Very good morning to all of you. Welcome to my YouTube channel. So students, today I am going to teach you about the set theory, and in this we will study the basic definitions of set theory. So first one is the definition of set. So what is a set? Set is basically the collection of well-defined objects, and we can say any collection of well-defined object is known as set, or a set is a collection of well-defined and different objects. So for example, A is equal to 1, 2, 3. This is a set. So these are basically denoted by capital letters like capital A, capital B, and capital C, and so on. Next is the element of set. So each object of a set is called an element of the set. So these are represented by small letters like A, B, C. And for example, A is the set, and this is equal to 1, 2, 3, 4, and 5. So inside these objects, these are basically the elements of set, and this is basically a set. So the set of days of a week is an example of set. The set of even integers, or we can say set of natural numbers, set of rational numbers, set of real numbers, all these are examples of a set, or a set of complex numbers. So another example is that that is not a set, is that the collection of best cricket team, the collection of beautiful flowers, the set of difficult problems in a chapter. So all these are the examples which are not a set. So next is the set formation. So set can be formed by two ways. First one is the tabular form, and second one is the set builder form. So in tabular form, what we will do, we will basically represent all its elements within braces, separated with commas. And in set builder form, we can say if a set is defined by the property which its elements must satisfy, so that set is known as, that form is known as the set builder form. For example, here in tabular form, a set of vowels is represented by A is equal to A, E, I, O, U. And another example is a set of odd natural numbers, that is B is equal to 1, 3, 5, so on. Similarly, for in set builder form, we have A is equal to X, and such that X is the vowel in the English alphabet. So this is basically the property of that element. Another example is that X, such that X is an odd positive integer, and next example is that X is an even less than 9. So all these are basically the properties of this element, of the certain element. सो बेसिकली जो सेट फॉर्मेशन है, इसमें हमारे पास टू टाइप्स होते हैं. एक को हम टेबुलर फॉर्म बोलते हैं, या इसको रोस्टर फॉर्म कहते हैं, या इन्यूमरेशन फॉर्म कहते हैं. दूसरे फॉर्म को हम सेट बिल्डर फॉर्म कहते हैं, या सिलेक्टर फॉर्म कहते हैं, या रूल मेथड कहते हैं, या प्रिडिक्टेड मेथड फॉर्म कहते हैं. सो जो टेबुलर फॉर्म होता है, उसमें हमें करना क्या होता है, जो उसके एलिमेंट्स होते हैं, जो सेट के एलिमेंट्स होते हैं, उनको हम क्या करते हैं, करली ब्रैकेट में रिप्रेजेंट करते हैं और सेपरेट करते हैं किससे, कॉमा से. जैसे कि यहाँ पे मैंने शो किया है कि सेट ऑफ वॉवेल्स को. इसी तरीके से जो सेट बिल्डर फॉर्म है, उसमें क्या होता है कि जो सेट है, उसके जो एलिमेंट्स है, वो जो उसकी क्या करना चाहिए, वो उसकी प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल, हम कहेंगे कि अगर वो किसी प्रॉपर्टी से डिफाइन की गई हो, जैसे कि यहाँ पे एक सेट हमने ए लिया, और यहाँ पे इसकी ये प्रॉपर्टी है कि जो इसमें एलिमेंट लिया है वो बेसिकली क्या है, दैट इज अ वॉवेल इन एन इंग्लिश अल्फाबेट. सो ये इसकी बेसिकली क्या है, एक प्रॉपर्टी है. सो इस फॉर्म को हम क्या कहेंगे, सेट बिल्डर फॉर्म. एंड नेक्स्ट इज द मेंबरशिप ऑफ ए सेट. सो हम कहेंगे कि कोई भी जो ऑब्जेक्ट है या एलिमेंट है, वो किसी सेट का मेंबर कब होता है, अगर वो क्या करे, उसमें बिलोंग करे या उसमें कंटेन करे. सो वी राइट इट एज एक्स बिलोंग्स टू ए, और वी कैन से दैट ए कंटेन्स एक्स. सो इफ एन ऑब्जेक्ट एक्स इज ए मेंबर ऑफ ए सेट ए, वी राइट एक्स बिलोंग्स टू ए, एंड which can be read as x belongs to a, or we can say that a contains x. Similarly, जो एलिमेंट्स x में नहीं होंगे, उसको हमें किस तरीके से रिप्रेजेंट करना है, x does not belong to a. So this is the notation for does not belong, or we can say that x is not a member of that set. For example, जैसे ये सेट a है, इसमें हमारे पास एलिमेंट्स है 1, 2, 5, 7, 9 और 10. मगर इसमें क्या है, इसमें जो 5 है वो a को तो बिलोंग कर रहा है, मगर जो अगर हम 6 की बात करेंगे, 6 इस सेट को बिलोंग नहीं करता. तो ये यहाँ से शो हो गया कि जो 5 है ये इसका मेंबर है, मगर 6 इसका मेंबर नहीं है.
सो नेक्स्ट इज द टाइप्स ऑफ सेट. सो टाइप्स क्या क्या होते हैं साइड के. फर्स्ट वन इज द फाइनाइट सेट, अदर वन इज द इनफाइनाइट सेट. फाइनाइट सेट वो सेट होता है जिसमें क्या होगा, हमारे पास फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे. सिमिलरली इनफाइनाइट सेट वो होगा जिसमें हमारे पास क्या होगा, इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे. फॉर एग्जाम्पल ए है, ये हमारे पास एक फाइनाइट सेट है. अगर हम एक और सेट लेते हैं बी इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज द सिटीजन ऑफ इंडिया. सो दिस इज अगेन अ फाइनाइट सेट. सो अनदर एग्जाम्पल फॉर द इनफाइनाइट सेट इज, जैसे हमने एक सेट लिया 1 2 3 सो ऑन. सो मीन्स ये कहीं पे स्टॉप नहीं हो रहा. सो दिस मीन्स ये क्या है, इसका इनफाइनाइट सेट है. अनदर एग्जाम्पल है कि जैसे x क्या है, x इज एन ऑड इंटीजर. तो ये भी हमारे पास इनफाइनाइट सेट है. सिमिलरली x इज अ मल्टीपल ऑफ 6. सो दिस इज ऑल्सो एन इनफाइनाइट सेट. नेक्स्ट डेफिनेशन इज द सिंगलटन सेट एंड वी कैन से कि जिस सेट में सिंगल एक एलिमेंट होगा उसी सेट को हम क्या कहेंगे, सिंगलटन सेट. सो ए सेट कंटेनिंग ओनली वन एलिमेंट इज कॉल्ड ए सिंगलटन सेट और वी कैन से इट एज यूनिट सेट. फॉर एग्जाम्पल ए इज इक्वल टू दिस सेट, दिस इज बेसिकली सिंगलटन सेट और इसमें एलिमेंट का क्या है, सिंगलटन है. सो ये हमारे पास सिंगलटन सेट हो गया. इसी तरीके से हमारे पास अगर वो पॉजिटिव इंटीजर जो क्या सेटिस्फाई करे ये प्रॉपर्टी क्या है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4. सो x की जगह पे हम सिर्फ 2 को ही पुट कर सकते हैं जो किसके इक्वल आएगा, 4. सो दिस मीन जो ये 2 है ये अगेन दिस इज अ सिंगलटन सेट एंड सो ऑन. सो नेक्स्ट इज एम्प्टी एंड नल सेट और वी कैन से वाइड सेट. सो वो सेट जो कोई भी एलिमेंट कंटेन ना करे उसको हम कहते हैं एम्प्टी सेट या नल सेट या उसको हम वाइड सेट कहते हैं. सो ए सेट विच कंटेन्स नो एलिमेंट इज नोन एज एम्प्टी सेट एंड इट इज डिनोटेड बाई फी. सो इन रोस्टर मेथड जो ये नल सेट है उसको या एम्प्टी सेट को हम सिर्फ करली ब्रैकेट से शो करते हैं और इसमें अंदर कोई एलिमेंट नहीं होता है. सो एग्जाम्पल देखें, a इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 वेयर x इज ए ऑड. सो दिस इज द एम्प्टी सेट बिकॉज ऐसा कोई नंबर नहीं होगा जो इस टर्म में क्या आ जाएगा, ऑड होगा. क्योंकि ये क्या करेगा, जब भी आप इसमें कोई भी टर्म डालोगे वो वहाँ पे 4 के, यहाँ पे सिर्फ 2 ही होगा जो 4 के इक्वल आएगा. सिमिलरली एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9 एंड x इज ए इवन, ऐसा कोई टर्म होगा नहीं बिकॉज इट विल बिकम यहाँ पे ऑड आ जाएगा. So these are the examples. So a set which contains at least one element is called non-empty set. So वो set जिसमें कम से कम हमारे पास एक एलिमेंट हो उस सेट को हम क्या कहेंगे, non-empty set. नेक्स्ट डेफिनेशन इज द ऑर्डर और कार्डिनल नंबर ऑफ ए फाइनाइट सेट. सो हम कहेंगे कि जो नंबर ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ ए फाइनाइट सेट ए इज कॉल्ड द ऑर्डर ऑफ दैट सेट. सो मीन जितने भी उसमें डिफरेंट एलिमेंट्स होंगे उस फाइनाइट सेट में उनको क्या बोलेंगे हम, ऑर्डर ऑफ दैट सेट एंड इट इज डिनोटेड बाय ऑर्डर ओ ऑफ ए और वी कैन से ऑर्डर ऑफ दैट सेट ए. सो जैसे हमारे पास ए ये सेट है 2 3 6 एंड 8. सो इसका ऑर्डर कितना हो गया, 4 बिकॉज इसमें जो एलिमेंट्स है वो सारे के सारे क्या है, डिफरेंट है और उनका और कितने हैं टोटल, इन नंबर है टोटल 4. सो दिस मीन्स ऑर्डर ऑफ ए किसके इक्वल आ गया, 4 के इक्वल. नेक्स्ट इज द इक्विवेलेंट सेट. सो हम कहेंगे दो फाइनाइट सेट्स अगर हमारे पास ए और बी है वो इक्विवेलेंट कब होंगे, अगर क्या होगा जो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए में होंगे वही क्या होंगे, इक्वल होंगे टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी. सो टू फाइनाइट सेट्स ए एंड बी आर सेड टू बी equivalent sets if the total number of elements in A is equal to the total number of elements in B. So or we can say two finite sets are equivalent if and only if their cardinal numbers are same. Means अगर उनका ऑर्डर क्या होगा, सेम होगा तो हम बोलेंगे वो सेट्स क्या है, इक्विवेलेंट. जैसे यहाँ पे देखिए ये ए सेट है और इसमें कितने एलिमेंट्स है, 5 एलिमेंट्स है. ये बी सेट है, इसमें कितने एलिमेंट्स है, इसमें भी 5 है. सो ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू 5 एंड ऑर्डर ऑफ बी इज ऑल्सो इक्वल टू 5. सो वी कैन से दैट ए एंड बी आर इक्विवेलेंट सेट्स. अब जो इक्वालिटी ऑफ सेट्स है ये डिफरेंट होता है. सो हम कहेंगे दो सेट्स जो ए एंड बी है वो इक्वल कब होंगे, अगर उनमें जो एलिमेंट्स होंगे वो एग्जैक्टली सेम होने चाहिए और उनको हम रिप्रेजेंट करते हैं ए इज इक्वल टू बी से. सो टू सेट्स ए एंड बी आर सेड टू बी इक्वल इफ दे हैव एग्जैक्टली सेम एलिमेंट्स एंड वी राइट ए इज इक्वल टू बी. अदरवाइज द सेट्स आर सेड टू बी अनइक्वल एंड वी राइट इट एज ए इज नॉट इक्वल टू बी. सो जो सेट्स इक्वल नहीं होंगे उनको हम अनइक्वल बोलेंगे. जैसे ये हमारे पास एक सेट है ए और ये दूसरा सेट है बी और ये हमारे पास थर्ड सेट सी और ये हमारे पास डी है. सो ए में जितने एलिमेंट्स हैं अब यहाँ पे देखेंगे वो एग्जैक्टली सेम है जो हमारे बी में. सो ए किसके इक्वल आ गया, बी के. सिमिलरली जो सी सेट है और डी सेट है इसमें भी एलिमेंट्स हमारे सेम है, चाहे हमने इसको 2 बार रिपीटिशन किए स्टिल एलिमेंट्स तो सेम है, इसलिए ये स्टिल ये भी क्या आएगा, इक्वल से इक्वलिटी में आएगा.
सो अनदर टर्म है, यहाँ पे 3 एलिमेंट्स है मगर यहाँ पे 2 एलिमेंट्स और यहाँ पे 3 एलिमेंट्स और ये डिफरेंट है। सो यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये दोनों सेट्स इक्वल नहीं है। सो दिस मीन्स E इज नॉट इक्वल टू F. Next definition is the disjoint set. So two sets A and B are said to be disjoint if no element of A is in B and no element of B is in A. So means दो sets को हम disjoint कब बोलेंगे कि अगर क्या होगा, कोई भी element A का जो होगा वो B में नहीं होगा और कोई भी element जो B का होगा वो A में नहीं होगा। जैसे ये R है, यहाँ पे ABC के elements और ये set S है, इसमें K P M है elements. So ये R और S क्या हो जाएंगे, disjoint, means totally different है ये। नेक्स्ट डेफिनेशन इज द फैमिली ऑफ सेट. सो हम कहेंगे ए सेट ए कंटेन्स एलिमेंट्स विच आर इटसेल्फ सेट्स इज नोन एज फैमिली ऑफ सेट. सो मीन्स वो सेट जो क्या कंटेन करेगा एलिमेंट्स और वो एलिमेंट्स खुद क्या होने चाहिए, वो सेट होने चाहिए. जैसे कि हमने रिप्रेजेंट किया ए और ये हमने यहाँ पे शो किया है दिस इज ऑल्सो सेट बिकॉज ये जो 1 और 2 है ये भी खुद सेट है, 3 4 है ये भी सेट है, फी है ये भी सेट है. सो मीन्स ऐसा जो सेट होगा जो कंटेन करेगा जो एलिमेंट्स जो खुद में सेट्स होंगे उनको हम क्या कहेंगे, फैमिली ऑफ सेट्स. नेक्स्ट डेफिनेशन इज ए सबसेट ऑफ ए सेट. सो हम कहेंगे इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए is also an element of set B, then A is called subset of B and it is written as A is subset of B and B is called the superset of A. So अगर हर एक एलिमेंट जो सेट A का होगा वो also एलिमेंट होगा सेट B का, ऐसे सेट को हम क्या बोलेंगे, सबसेट बोलेंगे. और वो क्या, उसको हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, A is subset of B. So मैथमेटिकली हम लिखते हैं A is subset of B is equal to all those x such that x belongs to A implies x belongs to B, or we can say this is equal to B and which is subset of A, superset of A. So if A is not subset of B, we write it as A is not equal not subset of B. So this is the notation for not subset. So another note is that since every element of A belongs to A, so means हर एक एलिमेंट जो खुद जो सेट का जो सेट में होता है वो खुद ही अपने सेट को मतलब इटसेल्फ को हमेशा बिलोंग करेगा. सो A इज ऑलवेज सबसेट ऑफ A. सिमिलरली जो एम्प्टी सेट होता है वो हमेशा उसको लिया जाता है सबसेट ऑफ एवरी सेट का. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमने एक एग्जाम्पल दी हुई है, यहाँ पे ए में एलिमेंट्स है 10 तक और बी में ये टर्म्स दी हुई हैं, सी में ये एलिमेंट्स है. सो हम कहेंगे कि जो एवरी एलिमेंट ऑफ बी है, तो बी में है 2 4 6 और 10 और वो ए में है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, जो बी है वो सबसेट है ए का. मगर अगर हम सी से देख लेंगे, सी सेट से, यहाँ पे सेट्स जो 7 है वो सी को तो बिलोंग कर रहा है मगर जो 7 है वो ए को बिलोंग नहीं कर रहा है. तो दिस मीन्स जो ए और जो सी है वो सबसेट ए का नहीं है. सो C is not the subset of A. नेक्स्ट डेफिनेशन इज द प्रॉपर सेट सबसेट. सो हम कहेंगे कि कोई भी सेट जो A है वो प्रॉपर सबसेट कब होगा, दूसरे सेट B का, अगर क्या हो कि A वो सबसेट होना चाहिए B का और साथ में क्या होना चाहिए कि जो A और B है वो आपस में इक्वल नहीं होने चाहिए. सो ए सेट A is said to be a proper subset of B if A is subset of B and A is not equal to B. So it is denoted by A contained B. सो ये हमारे पास एग्जाम्पल में है, ये मैंने एक सेट ले लिया, ये बी सेट ले लिया, तो मीन्स ए जो है वो सबसेट है, प्रॉपर सबसेट है किसका, बी का, क्योंकि इसके जो एलिमेंट्स है वो इसमें फॉल कर रहे हैं. नेक्स्ट इज द इम्प्रॉपर सबसेट. सो ये जो इसका प्रॉपर सबसेट का कन्वर्स जो होगा वही इम्प्रॉपर होगा, बस यहाँ पे नॉट इक्वल टू की जगह पे इक्वल टू हो जाएगा. सो इफ ए इज ए सबसेट ऑफ बी एंड ए इज इक्वल टू बी देन ए इज सेड टू बी द इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ बी. सो एवरी सेट इज इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ इटसेल्फ. सो ये हमारे पास एक सेट ए है और ये दूसरा है. सो ये क्या आ जाएगा आपस में, ये एक दूसरे का क्या बन जाएगा, इम्प्रॉपर सेट. सो ए इज द इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ बी. नेक्स्ट इज पावर सेट. सो हम बोलेंगे पावर सेट बेसिकली होता है क्या है, इट इज़ द फाइनाइट सेट एंड इट इज़ द बेसिकली सेट ऑफ ऑल द सबसेट्स. सो अगर हमारे पास कोई भी सेट है और उसके जितने भी सबसेट्स हमें मिलेंगे उसकी पूरी कलेक्शन को हम पावर सेट कहते हैं. सो द पावर सेट ऑफ ए फाइनाइट सेट इज द सेट ऑफ ऑल द सबसेट्स ऑफ द गिवन सेट and it is denoted by P, that is P means power of that set, that is P of A. So if A has n elements, so अगर हमारे पास कोई सेट है उसमें n एलिमेंट्स है तो उसके जो पावर सेट में है उसमें 2 रेज पावर n एलिमेंट्स होंगे. सो A हमारे पास अगर 1 2 3 सेट है तो इसका पावर सेट कैसे बनेगा, पहला सारे एलिमेंट सारे सबसेट्स आएंगे,
पहले आ जाएगा फी, क्योंकि फी हमेशा होगा, देन सिंगलटन सेट 1, देन 2, देन 3, फिर 1 और 2, देन 1 3, देन 2 3 एंड 1 2 3. So all these are basically the subsets of this set A. Next definition is the universal set. So if all the sets under consideration are subsets of a fixed set U, then U is called the universal set. हम कहेंगे कि अगर हम लेके चल रहे हैं, यूनिवर्सल सेट होता क्या है कि अगर हम जितने भी सेट्स अंडर कंसिडरेशन या इन्वेस्टिगेशन में ले रहे हैं वो क्या होंगे, सबसेट होंगे किसी फिक्स सेट के. हमने एक फिक्स सेट डिफाइन कर दिया और उस सेट के क्या होंगे, वो सबसेट्स होंगे. तो ऐसे सेट को हम बेसिकली क्या कहेंगे, यूनिवर्सल सेट. For example, in plane geometry, the universal set consists of points in a plane. Next definition is the comparable and non-comparable set. So हम कहेंगे कि two sets are comparable to be comparable if one of the two sets is a subset of other. So दो sets comparable कब होंगे, अगर इनमें से कोई one of the two sets जो होंगे वो क्या होगा, that will be the subset of the other. जैसे A हमारे पास ये टर्म है, A सेट ये है और ये B सेट है, ये C है. So हम कहेंगे A जो है वो सबसेट है B का, क्योंकि जो इसके एलिमेंट्स है वही इसमें है. So A and B are ये कंपेरेबल है. मगर ऑन द अदर हैंड अगर देखा जाएगा, जो A है वो सबसेट नहीं है C का और C जो है वो सबसेट नहीं है A का. सो हेंस A एंड C आर नॉट कंपेरेबल. नेक्स्ट आर द वेन डायग्राम. सो जो हम रिलेशन शो करते हैं बिटवीन सेट्स में कैन बी बेसिकली इलस्ट्रेटेड बाय सर्टन डायग्राम्स कॉल्ड वेन डायग्राम्स. सो इन वेन डायग्राम्स जो यूनिवर्सल सेट है उसको हम रेक्टेंगल से शो करते हैं और जो हमारे पास उसमें सबसेट्स होते हैं उसको हम बेसिकली सर्कल से रिप्रेजेंट करते हैं. So we can say the relation between sets can be illustrated by certain diagrams called Venn diagrams. In a Venn diagram, universal set is represented by a rectangle and any subset of U, that is this universal set, is represented by a circle within a rectangle U. So जैसे ये मैंने सेट बनाया है, this is the universal set, ये इसका सबसेट है. ये यूनिवर्सल सेट में एलिमेंट्स थे 1 से लेकर 10 तक और इसका एक सबसेट मैंने कोई ले लिया 2 और 3. सो यहाँ पे मैंने इसको शो कर दिया. सो मीन्स ये जो A है ये इसका क्या बन गया, सबसेट, और ये बाकी सारे क्या इसके नंबर्स है. So next is the operation on sets and we can and laws of sets. So ये बहुत important है और हमें पता होना चाहिए कि जो हमारे जो हम सेट्स पे ऑपरेशन करते हैं वो बेसिकली हमारे पास 5 टाइप्स होते हैं. सो पहला होता है दैट इज़ द यूनियन, सेकंड वन इज़ इंटरसेक्शन, थर्ड इज़ द डिफरेंस, फोर्थ इज़ द कंप्लीमेंट एंड फिफ्थ इज़ द सिमेट्रिक डिफरेंस. सो हम कहेंगे यूनियन ऑफ सेट्स क्या होता है. यूनियन ऑफ सेट्स, अगर कोई दो सेट्स हमने ले लिए हैं उनका यूनियन क्या होगा, इज डिफाइंड टू बी द सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स विच बिलोंग टू A और B और बोथ. सो या वो ये पूरे ये जैसे मैंने शेडेड रीजन में शो कर दिया है. सो दिस इज द यूनिवर्सल सेट एंड दीज आर टू सेट्स. सो A यूनियन B इज दिस शेडेड रीजन, मीन्स बोथ. ये जो A और B का होल कलेक्शन मीन्स होल ये जो शेडेड फिगर है, दिस इज बेसिकली A यूनियन B. सो हम इसको मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं कि दैट एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू A और एक्स बिलोंग्स टू B, या हम इसको लिख सकते हैं और इसमें जैसे हमारे पास एक एग्जांपल है A 1 2 3 और B दूसरा सेट है, इसमें एलिमेंट्स है 3 4 5 6. सो हम A यूनियन B को क्या बोलेंगे, ऑल दो सेट्स विच बिलोंग्स टू A और B और बोथ. सो A यूनियन B क्या बन जाएगा यहाँ पे, इन दोनों का पूरा कलेक्शन, दैट इज 1 2 3 4 5 एंड 6. सो मीन्स टोटल कलेक्शन आ जाएगा. इसी तरीके से इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स में क्या आ जाएगा, इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स A एंड B इज द सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स विच बिलोंग टू बोथ A एंड B एंड इज डिनोटेड बाय A इंटरसेक्शन B. सो मीन्स हम इसको मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे, x सच दैट x बिलोंग्स टू A एंड x बिलोंग्स टू B. सो मीन्स वो वाला पोर्शन जो A में भी बिलोंग करेगा और B में भी बिलोंग करेगा, और वो कौन सा होगा, दिस शेडेड रीजन. ये हमारे पास इसकी एग्जाम्पल, अगर ये A मैंने ये लिखा हुआ है, B ये सेट है हमारे पास, तो A इंटरसेक्शन B हो गया जो इन दोनों में कॉमन होगा. तो इन दोनों में जो कॉमन है दैट इज AB. Next is the difference of sets. So the difference of two sets A and B is the set of all those elements which belong to A but do not belong to B. So वो set जो क्या करेगा, contain करेगा all the elements जो which belongs to A but do not belong to B. तो means A में वो होने चाहिए सारे elements मगर B में नहीं होने चाहिए. तो that is denoted by A minus B. So A minus B is mathematically represented by x such that x belongs to A and x does not belongs to B.
दिस इज द एग्जाम्पल। बेसिकली ये ए हमने सेट लिया ए बी सी डी और बी दिया है डी एल एम एन। सो ए माइनस बी कौन सा सेट हो जाएगा, ए बी सी का। सो मीन्स वो एलिमेंट्स जो क्या होंगे, ए में होंगे मगर बी में नहीं होंगे। तो ये वाला शेडेड पोर्शन आ जाएगा आपके पास ए माइनस बी का। नेक्स्ट इज द कंप्लीमेंट ऑफ ए सेट। सो द कंप्लीमेंट ऑफ ए सेट ए इज द सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स ऑफ यूनिवर्सल सेट विच डू नॉट बिलोंग टू ए एंड इज डिनोटेड बाई ए कंप्लीमेंट। सो वो सारे एलिमेंट जो यूनिवर्सल सेट को बिलोंग करेगा, जो विच डू नॉट बिलोंग टू दैट सबसेट। सबसेट कौन सा होगा, दैट ए। सो यहाँ से आएगा। बेसिकली हम क्या करते हैं, ए कंप्लीमेंट में हम उसको यूनिवर्सल सेट से उसका डिफरेंस ले लेते हैं। सो वी कैन राइट इट एज एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू यू एंड एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए, और वी कैन से एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए। सो ये हमारे पास पोर्शन आ जाएगा इसका, दिस इज द शेडेड रीजन जो है वो आ जाएगा आपके पास ए कंप्लीमेंट। सो इसकी एग्जाम्पल है जैसे a इज इक्वल टू 1 2 3। सो ए कंप्लीमेंट क्या होगा, ऑल नेचुरल नंबर्स एक्सेप्ट कौन से टर्म्स, ये 1 2 3 इनको छोड़ के। नेक्स्ट डेफिनेशन इज, नेक्स्ट ऑपरेशन इज द सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट। सो सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स ए एंड बी इज द सेट कंटेनिंग ऑल द एलिमेंट्स दैट आर इन ए और इन बी बट नॉट इन बो। सो मीन्स वो सारे एलिमेंट जो ए में होंगे या बी में होंगे मगर दोनों में नहीं होंगे। सो इट इज डिनोटेड बाय ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी। सो ये भी हम इस तरीके से भी, ये चीज़ आप हमेशा नोट रखें कि जो ए माइनस बी होता है दैट इज नॉट इक्वल टू बी माइनस ए। सो कुछ बुक्स में इसको इस तरीके से भी रिप्रेजेंट किया जाता है, ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। सो मतलब सेम ही है। सो आप ये चीज़ लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल टू ए दैट इज सिमेट्रिक डिफरेंस विथ रेस्पेक्ट टू बी एंड दिस इज इक्वल टू ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। सो ये हमारे पास इसका जो ये हमने शेडेड रीजन आ गया, ये हमारे पास क्या आ गया, इसका जो मैंने शो किया दैट इज बेसिकली द सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ द सेट। सो ये हमारे पास एक एग्जाम्पल है। अगर ए मेरे पास है सेट ए बी सी डी और बी मेरे पास है ए बी एल एम, तो इनका जो सिमेट्रिक डिफरेंस मिल जाएगा वो सारे एलिमेंट्स या वो ए में होंगे या बी में होंगे मगर दोनों में नहीं होंगे। तो वो कौन सा आ जाएगा, सी डी एल एम। इसी तरीके से ये हमारे पास एक सेट है और इसका अगर हम इसी सेट के साथ सिमेट्रिक डिफरेंस लेंगे वो हमेशा एम्प्टी सेट होगा। और अगर हम अगर ए हमारे पास कोई सेट जैसे 1 2 3 4 है और अगर हम इसका सिमेट्रिक डिफरेंस एम्प्टी सेट के साथ लेंगे वो सेट इटसेल्फ होगा। So next is the fundamental laws of algebra of sets. So these are the fundamental laws और ये हमारे पास 10 laws है। So आप मैं जो इसका प्रूफ है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, मगर आज इस वीडियो में मैं आपको इसके जस्ट एक बार आपको इसका रिव्यू बता देती हूँ कि क्या होते हैं। सो फंडामेंटल लॉज ऑफ एल्जेब्रा ऑफ सेट्स में पहली प्रॉपर्टी आती है, फर्स्ट लॉ इज द आइडेम्पोटेंट लॉ, सेकंड इज द एसोसिएटिव लॉ, देन इट इज कम्यूटेटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, देन इट इज डी मॉर्गन्स लॉ, देन इज आइडेंटिटी लॉ, देन कंप्लीमेंट लॉ, देन इन्वोल्यूशन लॉ, देन एब्जॉर्प्शन लॉ एंड डोमिनेशन लॉ। सो आइडेम्पोटेंट लॉ कहता है कि अगर ए यूनियन ए हम करेंगे, मीन्स ए का यूनियन ए के साथ ही करेंगे, वो ए ही आएगा। सिमिलरली इंटरसेक्शन के लिए भी ये होल्ड करेगा। एसोसिएटिव में आएगा अगर हमारे पास ए बी और सी तीन सेट्स है, तो सेम यहाँ पे है, यहाँ पे आप नोट रखें ये सारे ए और बी सी ये सारे सेट्स हैं। सो ए बी सी सेट्स है और अगर हम इनका यूनियन लेंगे तो पहले दो टर्म्स का जो यूनियन होगा विथ रेस्पेक्ट टू थर्ड टर्म के साथ उसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, दैट इज ए यूनियन बी यूनियन सी। सो सेम चीज़ इंटरसेक्शन के लिए भी एग्जिस्ट करेगी। कम्यूटेटिव लॉ कहते हैं कि अगर ए यूनियन बी दिस इज ऑलवेज इक्वल टू बी यूनियन सी, और इंटरसेक्शन में भी यही रहेगा, ए इंटरसेक्शन बी दिस इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। सो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है कि अगर ए का हम यूनियन लेंगे और बी और सी के इंटरसेक्शन के साथ, सो वो किसके इक्वल हो जाएगा, देन पहले दो टर्म्स का यूनियन दैट इज ए यूनियन बी, देन इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। सिमिलरली इसमें भी इंटरसेक्शन हम चेंज कर सकते हैं, यहाँ पे बाहर इंटरसेक्शन करेंगे और जो इसके ब्रैकेट्स के अंदर है वहाँ पे यूनियन लिखेंगे तब भी ये होल्ड करेगा। दैट इज डी मॉर्गन्स लॉ कहता है कि ए यूनियन बी का अगर होल कंप्लीमेंट लेंगे वो किसके इक्वल होगा, ए कंप्लीमेंट, और जो ये यूनियन है वो किस में चेंज हो जाएगा, इंटरसेक्शन में हो जाएगा, देन बी कंप्लीमेंट, और जहाँ पे इंटरसेक्शन होगा वो किस में चेंज हो जाएगा, वो यूनियन में चला जाएगा। आइडेंटिटी लॉ कहता है कि ए का अगर हम यूनियन एम्प्टी सेट के साथ करेंगे तो वो हमेशा ए ही आएगा, और ए का अगर हम इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट के साथ करेंगे वो भी ए ही आएगा।
कंप्लीमेंट ला है कि ए यूनियन ए का जो कंप्लीमेंट होगा वो ऑलवेज किसके इक्वल होगा, यूनिवर्सल सेट। सिमिलरली ए इंटरसेक्शन ए का कंप्लीमेंट एम्प्टी होगा और यूनिवर्सल सेट का कंप्लीमेंट हमेशा एम्प्टी होगा, और जो एम्प्टी सेट का कंप्लीमेंट जो होगा दैट विल बी यूनिवर्सल सेट। इन्वोल्यूशन ला स्टेट्स दैट कि ए कंप्लीमेंट का होल कंप्लीमेंट जो होगा दैट विल बी द सेट इटसेल्फ, दैट इज ए। एब्जॉर्प्शन ला स्टेट्स दैट इफ ए इज ए यूनियन then A intersection B this is equal to A. Similarly for the other term, that is अगर हम यहाँ पे intersection लगाएंगे और brackets के अंदर union लगाएंगे तब भी ये A के equal ही आएगा। लास्ट ला इज द डोमिनेशन ला। सो इसमें है कि अगर ए का यूनियन हम यूनिवर्सल सेट के साथ लेंगे तो वो यूनिवर्सल सेट ही आएगा। सिमिलरली ए का इंटरसेक्शन अगर हम एम्प्टी सेट के साथ लेंगे तो वो एम्प्टी सेट ही आएगा। सो यहाँ पे इस वीडियो में इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं इसके प्रूफ्स करके दिखा दूंगी। सारे प्रूफ जो इतने हमारे पास 10 लाज है इनका प्रूफ आएगा, क्योंकि ये कई बार पेपर में आ जाता है कि स्टेट एंड प्रूव द फंडामेंटल लॉज ऑफ अलजेब्रा ऑफ सेट्स। सो थैंक यू।